Good afternoon, dear students. Let us start with our unit number 1, LDE and its applications. Before proceeding further, we should know what is a differential equation. So let me just begin with the definition. An equation which contains the derivatives of dependent variables with respect to the independent variables is called a differential equation. Say dv by dt is equals to some cos t. So it is velocity derivative is a function of time. So likewise, order of a differential equation is the order of the highest derivatives appearing in the equation. Suppose you are given a differential equation d5y upon dx 5 plus d cube y upon dx cube minus y is equals to x raised to 4. So what is this differential equation all about? See, firstly, y depends on x. The variable which appears in the numerator is the dependent variable. So y depends on x. Fifth order derivative of y with respect to x plus third order derivative of y with respect to x minus y itself if it is equals to x raised to 4. If this is the given differential equation, then we observe that the highest derivative is d5y upon dx 5. So this is highest order derivative in this equation. So order of this differential equation is 5. So I hope order of differential equation is clear to you. Now let us proceed for degree of a differential equation. The degree of a differential equation is the highest power of the derivative appearing in the equation when the equation is free from radical signs and fractions. See, this is very important from the point of view of your GATE exams also. In GATE exams, there is a question on order and degree of a differential equation. So this discussion will serve that purpose. So to obtain the degree of a differential equation, firstly, your equation should be free from radical signs and fractions. So for example, in this equation, you don't find any radical sign, you don't find any fraction sign. Radicals means a square root, cube root, and fractions means say 2 by 3, 1 by 3 also, right? So this differential equation is free from radical signs and fractions. So we can decide its degree. Now what is degree of this differential equation? Observe the differential equation. This is second order derivative of y with respect to x. This is first order derivative of y with respect to x, but it is to the power 2 and plus y equals to 0. So to obtain the degree of this equation, first of all, you have to see which is the highest order derivative. So this is the highest order derivative and it is to the its power is 1, it is raised to 1, right? This is first order derivative but raised to 2, and this is second, which is more than first. Second order derivative power is raised to 1. So degree of this differential equation is 1. So is the concept of degree and order clear to each one of you? डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है समझ में आ गया? यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5 था, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 5 है और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव ये थी, लेकिन इसका पावर 1 है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है. इज दिस क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? यस, इफ इट इज क्लियर वी विल प्रोसीड फर्दर. तो कोई भी इक्वेशन दे दूं, ऑर्डर डिग्री निकालते आ जाएगी आपको? यस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको पहले समझ लेते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए. तो इस इक्वेशन की डेफिनेशन को आप बाय हार्ट लर्न करेंगे. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव appear in degree 1 only and are not multiplied together
is called linear differential equation which is in short called LDE. तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, अब जैसे कि यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स अ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव्स है उसके, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर की, तो डिग्री, डेरिवेटिव की डिग्री और y की डिग्री 1 होगी, उस इक्वेशन को कहेंगे LDE. Yes, there is some voice. All of you please switch on your mic. Switch off your mic. Yes. तो as far as this equation is concerned, it is not a LDE, क्योंकि LDE होने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए. पहले तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स डिग्री 1 में आने चाहिए. तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, बट ये वाले डेरिवेटिव की डिग्री 2 है, तो ये LDE नहीं है. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, y और ये डेरिवेटिव्स साथ में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए. तो वो कंडीशन तो यहाँ पे होल्ड हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये LDE नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल्स जब आप देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा. A differential equation in which the dependent variable and its derivative appear in degree 1 only and are not multiplied together is called a linear differential equation. Learn this by heart. अब solution, differential equation की solution क्या होती है, तो suppose this is a differential equation, तो इसकी solution यानी क्या, y और x में वो relation जो इस equation को satisfy करें. मतलब एक y ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x आपको ढूंढना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि उसके सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस उसके फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर प्लस वो y ऑफ x इटसेल्फ, इन तीनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0. तब मैं कह सकती हूँ कि वो y फंक्शन ऑफ x सॉल्यूशन है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ रिलेशन between the dependent and the independent variable that satisfies the given differential equation. अब और डिटेल में जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो एक ऐसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन ही है, लेकिन पर्टिकुलरली वो सॉल्यूशन दैट कंटेन्स as many arbitrary constants as the order of the differential equation. आपको दिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी कुछ ऑर्डर होगी, ठीक है, ऑर्डर 2, 3, 4 ऐसे कुछ होगी. तो जितना उसका ऑर्डर है, अगर उसके सॉल्यूशंस में, अगर उसके सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट्स दिखाई दे तो वो कहलाएगी जनरल वाली सॉल्यूशन दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन की. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर इसका ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, उसके सॉल्यूशन में C1 और C2 ऐसे दो कांस्टेंट्स अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो वाली सॉल्यूशन इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल वाली सॉल्यूशन है. अब आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे. वो सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से मिलती है बाय सब्स्टिट्यूटिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. अब जैसे कि इसके सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट्स हैं, C1 और C2, और C1 C2 को मैंने दो वैल्यूज दे दी, असाइन कर दी, आर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी वैल्यू 1 और 2 से. तो 1 और 2 वैल्यू डालने के बाद में जो भी सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. इज दिस क्लियर? ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें आगे यूज होती हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर ली है. इज दिस क्लियर? एम आई ऑडिबल क्लियरली? किसी को कुछ पूछना है तो फिर बाद में आगे बढ़ जाते हैं हम. एनीवन विश टू आस्क एनीथिंग? यहाँ तक क्लियर है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. शैल वी प्रोसीड फर्दर?
यस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और एक तो एलडीई विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अब आप नाम से ही समझ पाओगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो वेरिएबल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, d2x बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 5dx बाई डी टी प्लस 4x इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी कॉस टी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एलडीई कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x, इंडिपेंडेंट t। x इज डिपेंडिंग ऑन द ओनली वेरिएबल t। दोनों भी वेरिएबल्स है, दोनों भी चेंज होंगे। जैसे कि x कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ले लीजिए आप, एक पार्टिकल स्पेस में मूव हो रहा है और उसकी x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि वो मूव हो रहा है। तो d2x बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 5dx बाई डी टी प्लस 4x इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टी। ये एक एलडी है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल x साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है और सब हर टर्म की डिग्री 1 है। दिस इज टू द पावर 1, दिस इज टू द पावर 1, x इज ऑल्सो टू द पावर 1 और ये t का फंक्शन है। सो दिस इज अ डिफरेंट linear differential in x of order 2 and this is moreover a LDE with constant coefficients। तो ये इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 5। ये कोएफिशिएंट है और ये डेरिवेटिव है। तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट फंक्शन है और 1 भी कांस्टेंट है। तो ये LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। क्लियर है आपको? यहां पर x डिपेंड्स ऑन t, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? x फंक्शन ऑफ t। कोई ऐसा x जो t के टर्म्स में डिफाइंड है जो इसे सेटिस्फाई करता हो। मतलब आप x को यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर परफॉर्म होने के बाद में आंसर क्या आएगा? ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टी। तो वो कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन पे आइए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो ये LDE है, दिस इज अ LDE विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अब देखिए ये इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है और y और डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है तो इसलिए ये LD है। अब ये जो कोएफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर है जो कि x का फंक्शन है, तो ये वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया। जैसे x चेंज होगा वैसे ये भी चेंज होगा, जैसे x चेंज होगा वैसे ये भी चेंज होगा। ये कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि दो फंक्शंस वेरिएबल हैं इसलिए ये LD विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है। जहाँ तक हमारा सिलेबस कंसर्न्ड है हम LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ही स्टडी करने वाले हैं, LDE विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? y इन टर्म्स ऑफ x जो इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब LHS में अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको RHS मिलेगा। इज दिस क्लियर? इफ इट इज क्लियर हम और एक एग्जांपल लेते हैं। डी क्यूब आर अपॉन डी थीटा क्यूब माइनस 2r dr बाई डी थीटा प्लस आर स्क्वेयर कॉस एच थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये LDE नहीं है क्योंकि r जो कि डिपेंडेंट है थीटा पर, r का पावर है r स्क्वेयर, तो इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो गई, इसीलिए ये LDE नहीं है। प्लस r और उसके डेरिवेटिव को साथ में मल्टीप्लाई भी किया है, इसलिए ये LDE नहीं है। इस एग्जाम्पल पे आइए, यहाँ पे z डिपेंड्स ऑन थीटा है और ये थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है डिग्री 1, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की डिग्री 2 है।
तो इसके कारण ये LDE नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया किसे LD कहोगे, किसे LD नहीं कहोगे। इफ इट इज क्लियर वी विल प्रोसीड फर्दर। यस, इज इट क्लियर? LD किसे कहना है, LD किसे नहीं कहना है? All of you, someone switch on the mic and let me know. Is this clear to each one of you? मैम फिर से बोलिए एक बार वैसे। कौन सा? LD का। ठीक है, देखो LD दो प्रकार के होते हैं, एक तो LD विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एक तो LD विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब LD में किसी इक्वेशन को LD कहना है तो उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले तो आपको ये नोटिस करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि इस एग्जांपल में ले लो, x है, जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो x डिपेंड्स ऑन t, वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स सब उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ऑर्डर यानी d3x अपॉन dt क्यूब, यहाँ पे ऑर्डर 3 है लेकिन इसका पावर 1 है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। टू द पावर 1 आहे ना हे, इथे टू द पावर 2 आहे, तसं इथे पावर 1 आहे। तर ऑर्डर 2 ची टर्मची डिग्री 1 आहे, ऑर्डर 1 च्या डिग्री 1 आहे आणि x चं पण डिग्री 1 आहे। तर डिग्री सगळ्यांची 1 आहे आणि एकमेकांसोबत ते मल्टिप्लाइड नाहीये, म्हणून त्याला म्हणायचं LDE। तर याचा सोल्यूशन काय असेल, x फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स है कोएफिशिएंट्स, तो इसलिए ये LD विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है। यहाँ पर LD है क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x, y और उसके डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड दिख रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, और सबकी डिग्री 1 ही है, इसकी टू द पावर 1, टू द पावर 1 एंड टू द पावर 1 साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है, एंड टू द पावर 1 है, इसलिए ये LD है। लेकिन इनके जो कोएफिशिएंट्स है, ये जो कोएफिशिएंट्स है ये फंक्शंस है x के, ये कांस्टेंट है लेकिन ये दो फंक्शंस हैं, तो इसे कहेंगे LDE विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। ऐसे इक्वेशंस हम सिलेबस में सीखेंगे। दिस इज LDE ऑफ ऑर्डर 2 विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। दिस इज नॉट अ LDE क्योंकि r और dr बाय डी थीटा को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये भी नहीं है क्योंकि इस डेरिवेटिव का डिग्री 2 है, इसलिए ये भी LDE नहीं है। इज इट क्लियर? आप समझ में आ गया सभी को? अगर समझ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस, ओके फाइन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन था LD विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, LD विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं हम, और एक कैटेगराइजेशन है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे फर्दर डिस्कशन के लिए कि आपका LDE नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस किसे कहेंगे? जिसका राइट हैंड साइड नॉन जीरो फंक्शन है उसे नॉन होमोजीनियस कहेंगे, राइट? अभी जैसे कि यहां पर x ऑफ x है, व्हाट इज इट? इट इज x ऑफ x फंक्शन ऑफ x। तो ये जनरल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस LDE की विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, A1 A2 अप टू AN, ये सब कोएफिशिएंट्स हैं, और वो कांस्टेंट्स यदि होते हैं और राइट हैंड साइड नॉन जीरो फंक्शन ऑफ x होता है, कैपिटल X ऑफ स्मॉल x लिखा है मैंने, कैपिटल X ऑफ स्मॉल x। तो अगर ऐसा इक्वेशन है तो वो नॉन होमोजीनियस LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कहलाएगा। और अगर ये कोई कांस्टेंट्स नहीं है और फंक्शंस है, जैसे कि P1 P2 Pn माइनस 1 ऑफ x, Pn ऑफ x इक्वल्स टू x ऑफ x, तो दिस इज नॉन होमोजीनियस LDE विथ वेरिएबल
कोएफिशिएंट्स। इज दिस क्लियर? नॉन होमोजीनियस किसे कहेंगे? अगर आपकी राइट हैंड साइड कोई x का फंक्शन है, x का फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन, कोसाइन, साइन एच, कॉस एच, एक्सपोनेंशियल या कांस्टेंट या a रेज टू x, या फिर इनका कॉम्बिनेशन अगर हो राइट हैंड साइड में, तो वो नॉन होमोजीनियस LDE कहलाएगा। और होमोजीनियस LDE भी दो प्रकार के हैं, एक तो विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड एक विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। होमोजीनियस LDE किसे कहोगे आप? अगर राइट हैंड साइड आपका 0 है तो वो हो जाएगा होमोजीनियस LDE। अगर कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स है तो LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स फंक्शंस है P1, P2, Pn ऑफ x, तो विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। होमोजीनियस LDE के दो प्रकार है, एक होमोजीनियस LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, एक होमोजीनियस LDE विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है? LDE दो प्रकार के हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस उन इक्वेशन को कहेंगे जिसका राइट हैंड साइड x का फंक्शन है जब y x पे डिपेंड करता हो, और अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0 है, राइट हैंड साइड फंक्शन आपका 0 है, तो वो कहलाएगा होमोजीनियस LDE। और इनके जनरल फॉर्म ऐसे है, dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 इंटू dy बाई dx प्लस any equals to x of x, where capital X is some function of small x, is a non-homogeneous LDE with constant coefficients। और अगर इसे 0 कर देते हैं तो it is a homogeneous LDE with constant coefficients। So is this point clear? homogeneous किसे कहना है, non homogeneous किसे कहना है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट है हमारे पास, हम पूछ सकते हैं। काही विचारायचंय का कोणाला? समजलं का? कारण ह्या लेक्चरच्या नंतर एक क्विज पाठवणार आहे मी, तर ती तुम्हाला करता आली पाहिजे। Is this clear? Tell me yes or no, whatever. If it is clear, we can proceed further. कोई तो माइक ऑन करके मुझे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ना है। यस। सो एक ओवरलुक कर लेते हैं हम फिर से। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर, उसकी डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलरली क्या वो सीखा है ना। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। फिर सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहेंगे। एलडी को हमने दो कैटेगरीज में सीखा, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, फिर से उसको कैटेगराइज किया होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस में। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस भी अपने आप में दो केसेस में डिवाइड है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। राइट, यहां तक हमने सीख लिया है, और ये जनरल फॉर्म है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे सिलेबस में हम सिर्फ एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स स्टडी करने वाले, मतलब उनके राइट हैंड साइड 0 रहेंगे, सॉरी जिनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स रहेंगे, ना कि वेरिएबल्स। तो होमोजीनियस यानी अगर राइट हैंड साइड 0 फंक्शन है तो होमोजीनियस, राइट हैंड साइड x का फंक्शन है तो वो नॉन होमोजीनियस। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे।
क्योंकि हम सॉल्यूशंस ढूंढने वाले हैं एलडीई के। तो नॉन होमोजीनियस एलडीई का सॉल्यूशन क्या रहेगा? नॉन होमोजीनियस एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का सॉल्यूशन क्या रहेगा? इस ऐसी इक्वेशन आपको दी रहेगी, n में भी 2, 3, 4, 5 हायर ऑर्डर के एलडीई का सॉल्यूशन हम ढूंढने वाले हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस एलडीई with constant coefficient is equals to complementary function plus particular integral. So general solution will be consisting two parts. एक आहे complementary function, दूसरा है particular integral. Particular integral is different from particular solution. Remember this. तो नॉन होमोजीनियस एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स is having a general solution, and the formula to obtain the general solution is complementary function plus particular integral. In short, GS is equals to CF plus PI. General solution is equals to complementary function plus particular integral. तो नॉन होमोजीनियस एलडीई का विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, नॉन होमोजीनियस एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा? सपोज ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड को 0 कर दो, तो ये दिए हुए नॉन होमोजीनियस का करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रहेगी होमोजीनियस का सॉल्यूशन जो CF कहलाएगा। CF क्या रहता है? होमोजीनियस एलडी का सॉल्यूशन, और PI क्या रहेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहां तक सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? अभी हमने क्या सीखा? आपको दिया है एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, नॉन होमोजीनियस, मतलब उसका राइट हैंड साइड नॉन जीरो फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर आपको नॉन होमोजीनियस एलडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स दिया जाए और उसका सॉल्यूशन पूछते हैं, तो उसका सॉल्यूशन रहेगा दो पार्ट्स में, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा? उसी इक्वेशन के होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब दिए हुए इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 ले लोगे तो वो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस हो गया, और उसका सॉल्यूशन रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।